یہ اے آئی کا یعنی ریئل زیل اکیڈمی کے تحت جو اے آئی کا کورس چلتا ہے اس کا یہ چوتھا بیچ ہے۔ الحمدللہ اب تک ہم نے 3 بیچز مکمل کر لیے ہیں۔ چوتھے بیچ میں آپ سب حضرات کا استقبال ہے۔ آپ میں سے کئی سارے لوگ ہمیں جانتے ہوں گے، کئی تو میرے ساتھیوں میں سے ہیں، کئی میرے سینئر ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ آپ مجھ سے واقف ہو جائیں گے کہ آپ کن سے سیکھ رہے ہیں۔ عبداللہ ممتاز میرا نام ہے، سیتا مڑھی بہار کا رہنے والا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند سے میری تعلیم ہے، اس کے علاوہ میں نے المعہد العالی امارت شریعہ پٹنہ، وہاں سے افتاء اور قضاء کا کورس ہوتا ہے، وہ کورس ہم نے 2 سالہ کورس کیا ہے۔ پھر مرکز اسلامی انکلیشور میں ہم نے انگلش پڑھی ہے 2 سال۔ تو یہ ہمارا تعلیمی سلسلہ رہا ہے۔ لکھنؤ میں ایک ادارہ ہے المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ کے نام سے، وہاں ہم نے بہت مختصر عرصہ تدریسی خدمت انجام دی۔ افتاء وغیرہ کے کورسز وہاں چلتے ہیں، افتاء اور دعوہ کورس چلتے ہیں۔ مولانا یحییٰ نعمانی بہت مشہور نام ہے لکھنؤ میں، انہی کا ادارہ ہے، وہیں ہم نے مختصر عرصہ خدمت انجام دیا تھا۔ اس کے بعد حیدرآباد میں فیس بک کمپنی میں ہم نے تقریباً 2 سال کا عرصہ وہاں ملازمت کی، اور پھر وہاں سے مالدیپ آ گئے۔ مالدیپ میں منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت اسکولز چلتے ہیں، گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں، تو انہی میں سے ایک اسکول ہے فنے اسکول کے نام سے، اسی اسکول میں میں پڑھاتا ہوں۔ یہاں عربی اور اسلامیات مجھ سے متعلق ہے۔ عربی پڑھاتا ہوں یعنی عملاً، اسلامیات پڑھاتا نہیں ہوں عملاً، بس نگرانی وغیرہ مجھ سے متعلق رہتی ہے۔ یہ جو ادارہ ہے نا، آن لائن ادارہ ہے ریئل زیل اکیڈمی کے نام سے۔ یہ ادارہ یعنی آن لائن ادارہ 2020 میں قائم ہوا تھا، اور الحمدللہ تب سے مسلسل چل رہا ہے۔ اس کے اندر کئی سارے کورسز ہوتے ہیں، مثلا ایک کورس ہوتا ہے انگلش، جس کے 70 سے زائد بیچز الحمدللہ ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف کورسز ہیں، ابھی فی الحال جیسے اے آئی کورس چل رہا ہے، اس کے علاوہ سرکاری دستاویز وغیرہ بنانے، اسے درست وغیرہ کرنے کے حوالے سے بھی ایک کورس چل رہا ہے۔ اس میں 3 اساتذہ ہیں، ایک مولانا معراج صاحب قاسمی ہیں، دوسرے مولانا ثاقب صاحب ہیں، اور تیسرا میں ہوں۔ ہم 3 لوگ اس ادارے کے تحت خدمت انجام دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے اے آئی کورس سیکھنے کا وہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، انشاءاللہ 40 روز تک ہم لوگ آپس میں وابستہ رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے۔ اس میں یہ جو آج پہلا دن ہے نا، تو پہلے دن میں ہم تعارف یعنی کراتے ہیں کہ کورس میں ہم کیا کچھ سیکھیں گے، تاکہ ایک پورا خاکہ اور ایک جو ہے وہ آؤٹ لائن ہمارے ذہن میں آ جائے، پھر ہمارے لیے آسان ہو ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ کورس ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، ہمیں آگے کنٹینیو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وغیرہ چیزیں۔ تو یہ تو آپ نے اشتہار میں دیکھا ہوگا کہ ہم یہ چیزیں پڑھائیں گے، یعنی اے آئی فنڈامنٹل، امیج جنریشن، پرومپٹ انجینئرنگ، اسی طریقے سے ویڈیو کریشن، کنٹینٹ رائٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائن، آڈیو اینڈ وائس، کیلیگرافی، ریسرچ اینڈ اسٹڈی۔ یہ چیزیں ہم سرسری طور پر وہ اشتہار کے اندر لکھتے ہیں۔ تو اے آئی فنڈامنٹل میں ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں کہ اے آئی کیا ہے، اے آئی ماڈل کیا ہوتا ہے، روزمرہ زندگی میں اے آئی کا ہم کیا استعمال کرتے ہیں۔ کئی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اے آئی کی کتنی قسم ہوتی ہے، ڈیٹا کیا ہوتا ہے، اے آئی کیسے کام کرتا ہے۔ اے آئی سے جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو وہ بہت مرتبہ غلط جواب دیتا ہے، خاص طور سے اسلامیات، یا آپ کہہ لیں کہ یعنی فقہی ٹاپک پر آپ بات کریں، حدیث کے ٹاپک پر بات کریں، حدیث یعنی سرسری طور پر متن حدیث نہیں بلکہ اس کی تحقیق اور تخریج کے حوالے سے بات کریں، تو بہت یہ غلط جواب دیتا رہتا ہے۔ تو ان غلط جوابات کی وجوہات کیا ہوتی ہے، اسی طریقے سے اے آئی کا فائدہ اور نقصان کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم اے آئی فنڈامنٹل ماڈیول میں سیکھیں گے۔ پھر ہمارے پاس ایک
मॉड्यूल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बज़ाहिर ये बहुत भारी भरकम सा लफ्ज है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब कुछ सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिक इंजीनियरिंग टाइप कोई चीज होती होगी। वैसा कुछ नहीं है। प्रॉम्प्ट होता है सिंपल सी हिदायत, यानी किसी को आप कहते हैं कि भाई मेरे लिए पानी ले आओ, किसी को कहते हैं कि भाई तुम मेरा फलां काम कर दो, है ना। तो वो जो हिदायत हम देते हैं उर्दू में, उसी को एआई की जबान में या एआई की इस्तिलाह में प्रॉम्प्ट कहते हैं। उसी प्रॉम्प्ट को हम एक खास अंदाज में एक खास तरीके से बनाते हैं, उसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। बाज़ाब्ते इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई इंजीनियरिंग की कोर्स करनी है और फिर वो जैसे सिविल इंजीनियर होते हैं वैसे आपको कोई डिग्री मिल जाएगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। तो उसमें हम क्या सीखेंगे, प्रॉम्प्ट क्या होता है, इसी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के उसूल क्या होते हैं, निगेटिव प्रॉम्प्ट, पॉजिटिव प्रॉम्प्ट, सिंपल एंड एडवांस प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट में जो गलतियां आती हैं वो आमतौर से क्या गलतियां होती है जिनसे हमें परहेज करना है। तो ये सब चीजें हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सीखेंगे। इसी तरीके से हमारे कोर्स का एक बहुत अहम मॉड्यूल है ग्राफिक डिजाइन, यानी आप इश्तिहार वगैरह और पोस्टर वगैरह डिजाइन करना सीखेंगे। इसी उसमें सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीखेंगे, यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखेंगे। कंट्रोल डिजाइन होता है कि आपके जहन में एक खाका है और आप उस जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर से काम कराते हैं ना, तो कैसा काम कराते हैं, उसको बताते हैं कि भाई हेडिंग यहाँ पे रखो, है ना, फला फला नाम, मसलन एक जलसे का इश्तिहार बनाना है, तो हम पूरा उसे खाका देते हैं कि भाई जेर सदारत फला जगह होनी चाहिए, जेर सरप्रस्ती फला जगह होनी चाहिए, है ना, जलसे की तारीख फला जगह होनी चाहिए, जलसे का मकाम। वो पूरे एक हिदायत देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके मुताबिक वो ग्राफिक डिजाइनर हमें तैयार करके देता है। तो आप एआई से भी वो काम कर सकते हैं कि बाजाब्ता आप इंस्ट्रक्शन दे करके और आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप जो है डिजाइन तैयार करा सकते हैं, वो हम सीखेंगे। इसी तरीके से आजाद डिजाइन, यानी आप अपने तौर पर कोई जो है आपके जहन में खाका नहीं है, आप मत सोचे, बल्कि एआई को कहें कि भाई तुम ये भी सोचो कि कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए डिजाइन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो एआई अपनी मर्जी से डिजाइन जो है बेहतर से बेहतर कैसे बना करके दे, ये चीजें हम सीखेंगे। इसी तरीके से ग्राफिक के अकसाम क्या होते हैं, ग्राफिक डिजाइन के कितने अकसाम होते हैं, स्टाइल्स हम सीखेंगे कि इसको बनाने के लिए, यानी ग्राफिक के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। उन चूंकि एआई में जो है ना, असल चीज होती है चीजों को जानना। यानी आपके जहन में जो एक खाका है, अगर आप कोरल ड्रा या एडोबी के एक्सपर्ट है तो आपके जहन में एक खाका है और आपके हाथ में माउस है, आप अपने खाका को माउस से वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन एआई में ऐसा नहीं होता है, एआई में आपको लफ्जों में बताना होता है कि मुझे फला काम चाहिए। तो अगर एक खाका या एक डिजाइन आपके जहन में है लेकिन उस डिजाइन का आपको नाम नहीं मालूम है, कौन सा स्टाइल है, कौन डिजाइन है, तो फिर एआई से काम नहीं करा सकते हैं। तो हम वो स्टाइल, उन स्टाइल्स के नाम सीखेंगे, जानेंगे, फिर उनका प्रैक्टिकल हम सीखेंगे। इसी तरीके से कई स्टाइल्स को ज्वाइन करने से नए स्टाइल बनते हैं, नए डिजाइन बनते हैं। जैसे होता है ना कलर्स में कि रेड कलर और वाइट कलर को ज्वाइन कर दे तो एक पिंक कलर खूबसूरत सा कलर बन जाता है। तो वैसे ही हम स्टाइल्स को ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं। फिर ग्राफिक में ये आप बहुत कॉमन इशू है, आम सा मसला है, आप सोशल मीडिया पर एआई से जनरेटेड इश्तिहार की भरमार देखते होंगे। अब तो यानी आए दिन क्या है कि दिन में 150 आराम से आप इस किस्म के इश्तिहार देखते हैं कि जो एआई जनरेटेड होते हैं। अब बाजाब्ता ग्राफिक डिजाइनर से लोग इश्तिहार जनरेट करा करके नहीं डालते हैं, लेकिन उसमें जो 90% आप इश्तिहार देखेंगे या डिजाइन देखेंगे तो उसके अंदर उर्दू की कुछ ना कुछ खामियां रहेंगी, नाम गलत है, मदरसे का नाम गलत है या कुछ भी, है ना, बहुत गलत सलत लिखता है एआई, अभी परफेक्ट नहीं हुआ है। तो हम उन खामियों को दूर करें कि हम अपना डिजाइन एआई से तो तैयार कराए, लेकिन हमारे डिजाइन के अंदर खामी नहीं होनी चाहिए, जबान की गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, वरना तो फायदा नहीं है।
है ना। वैसे तो आप वैसे भी बनवा सकते हैं, वो उल्टा सीधा कुछ बना करके दे देगा। इस कोर्स को सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि एआई से आप इश्तिहार जनरेट कराएं, डिजाइन तैयार कराएं, और उसके अंदर जबान की कोई भी खामी नहीं हो, जरा भी खामी नहीं हो। बिल्कुल जैसा आप यानी एक ग्राफिक डिजाइनर से तैयार कराते हैं, वैसा डिजाइन आपका होना चाहिए। इसी तरीके से ग्राफिक डिजाइन टूल्स, किन टूल्स का इस्तेमाल करके आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, ये सब चीजें हम इस मॉड्यूल के तहत सीखते हैं। इसमें एक मॉड्यूल है इमेज जनरेशन। इमेज जनरेशन में इमेज की अकसाम, कितने किस्म की इमेजेस होती हैं, फिर इमेज की स्टाइल्स, किस किस, बहुत सारी स्टाइल्स आपने देखा होगा। एक मर्तबा वो ट्रेंड चला था थोड़े दिन पहले, जिबली आर्ट का, है ना। तो अब जिबली आर्ट ट्रेंड, इसी तरीके से वो अभी थोड़े दिन पहले एक वो ट्रेंड चल रहा था, वो खाका वाला, है ना, आउटलाइन वाली इमेज जो चल रही थी। तो उस टाइप के स्टाइल्स हम सीखेंगे। इसी तरीके से स्टाइल्स कॉम्बिनेशन के, हम वही स्टाइल्स को ज्वाइन करके हम एक नया स्टाइल तैयार करें। टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करना, यानी हम तहरीर दे और तहरीर से एआई हमें तस्वीर तैयार करके दे दे। या इसी तरीके से इमेज टू इमेज, यानी हम इमेज दे और उस इमेज से एआई एक नई इमेज बना करके दे। मसलन आपने तस्वीर दी, एक आदमी सीधा साधा खड़ा हुआ है, और एआई उसको बना करके दे दे कि वो आदमी 10 20 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, या वो आदमी जामे मस्जिद में खड़े होकर के तकरीर कर रहा है। तो ये इमेज टू इमेज होता है ना। इसी तरीके से इमेज के लिए प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इमेज एडिटिंग एंड करेक्शन, यानी इमेज में जो गलतियां होती है उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, उसे परफेक्ट कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से ब्रांड इमेजेस, यानी अगर कोई प्रोडक्ट है आपके पास, या किसी दूसरे के प्रोडक्ट के लिए आप इमेज जनरेट कर रहे हैं, तो वो इमेज आप कैसे तैयार करें। यानी एक जैसे इश्तिहार होता है ना, बाज़ाब्ता टीवी पर आप इश्तिहार देखते हैं, सोशल मीडिया पर, या वैसे भी यानी यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर जो प्रोडक्ट के इमेजेस देखते हैं, तो उस लेवल की इमेजेस आप कैसे जनरेट कर सकें। तो हम इसमें ये सब चीजें सीखेंगे। इमेज के लिए एआई टूल्स, कौन कौन से एआई टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब चीजें यहाँ आएंगी। इसी तरीके से हमारा एक मॉड्यूल है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में हम सीखेंगे सबसे पहले तो कैलीग्राफी क्या होती है। फॉन्ट एंड स्टाइल, यानी कैलीग्राफी के किन किन फॉन्ट्स को एआई सपोर्ट करता है, और किन किन फॉन्ट्स में हम एआई वो तैयार करा सकते हैं। स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। इसी तरीके से कैलीग्राफी प्रॉम्प्ट के सोर्सेस, यानी आप ये जो है कैलीग्राफी जो डिजाइन्स होते हैं ना, इतने सारे डिजाइन्स होते हैं, तो उसके लिए बने बनाए प्रॉम्प्ट आप कहाँ से ला सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको बने बनाए प्रॉम्प्ट मिल जाते हैं, वहां से आप प्रॉम्प्ट उठाइए, आप अपना डिजाइन बना लीजिए। या इसी तरीके से वो प्रॉम्प्ट आप उठाइए और प्रॉम्प्ट को आप अपने एतबार से मॉडिफाई करिए, तैयार करिए, उसमें जो चेंजेस आपको चाहिए वो चेंजेस करके, और आप अपना खुद का एक नया डिजाइन और नई किस्म की कैलीग्राफी आप तैयार कर सकते हैं। कैलीग्राफी के नए डिजाइन तैयार करना वगैरह चीजें, जब ये सब चीजें हम सीखेंगे ना, यानी इमेज हमें तैयार करना है, इसी तरीके से वीडियो तैयार करना है, इसी तरीके से हमें वॉइस भी तैयार करना है, मुख्तलिफ चीजें, इश्तिहार तैयार करना है। तो इन सब चीजों की जो बुनियाद होती है ना, वो तो कंटेंट होता है। कंटेंट है आपके पास, तभी आप ये चीजें तैयार कर पाते हैं। इस वजह से हमारा एक मॉड्यूल है कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग में हम सीखते हैं कि कंटेंट होता क्या है, फिर उसके बाद कंटेंट इसकी कितनी किस्म की तहरीर होती है, राइटिंग के क्या उसूल हैं, तहरीर की साख्त कैसी होनी चाहिए, सिंपल राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, कहानी की तख्लीक कैसे करते हैं। तहरीर को आप, तहरीर से मुराद एक्चुअल तहरीर नहीं, यानी तहरीर जो आप लिखेंगे अपनी ऑडियो के लिए, अपनी वीडियो के लिए, या अपने इश्तिहार के लिए, जिस चीज किसी चीज के लिए आप तहरीर लिखते हैं, तो वो इंगेजिंग होना चाहिए, यानी ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए। इसी तरीके से
ऑडियंस साइकोलॉजी क्या होती है, यानी ऑडियंस किस किस्म की तहरीरों को, वीडियो को देखना पसंद करती है, वगैरह। इसी तरीके से हम इसमें सीखते हैं वीडियो जनरेशन। वीडियो जनरेशन क्या होता है कि यानी अभी आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जो एआई जनरेटेड वीडियोस होती हैं, है ना। तो हम सीखेंगे कि कितनी किस्म की वीडियोस होती हैं, किन स्टाइल्स की वीडियोस होती हैं। प्रॉम्प्ट से वीडियो, यानी डायरेक्ट आप प्रॉम्प्ट दें और वो एआई आपके लिए वीडियो बना करके दे दे। इसी तरीके से इमेज से वीडियो जनरेट करना, यानी आप अपनी इमेज दे और आपकी इमेज से फिर वो वीडियो बनाए, या किसी की भी इमेज आप दीजिए और उस इमेज से फिर वो वीडियो बनाए। इसी तरीके से हम सीखेंगे सीन तैयार करना, कैरेक्टर तैयार करना, मुख्तलिफ किस्म के वीडियोस की प्रैक्टिकल हम यानी करके बताएंगे। वो कई क्लासेस उसकी होती हैं। उसके बाद कैमरा एंगल, चूंकि जो है ना, इमेज और वीडियो में कैमरा एंगल समझना ये बहुत जरूरी होता है। उसी बुनियाद पर आप जो है वो वीडियो बनाते हैं या इमेज तैयार करते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसमें कैमरा एंगल भी समझेंगे। इस कैमरा एंगल को समझने के बाद आप जो मोबाइल से इमेज तैयार करते हैं ना, फोटो खींचते हैं, उसकी भी, उसमें भी आपको बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद कैरेक्टर बेस्ड वीडियो, इसी तरीके से नरेशन बेस्ड वीडियो। कैरेक्टर बेस्ड वीडियो क्या होती है, जिसमें एक कैरेक्टर बात कर रहा होता है, तकरीर कर रहा होता है, कोई चीज डिस्क्राइब कर रहा होता है। और नरेशन बेस्ड क्या होता है कि जिसमें डॉक्यूमेंट्री टाइप होती है, यानी एक कहानी टाइप आदमी कहता चला जाता है, कहानी जो है वो चलती रहती है और उसके हिसाब से इमेजेस या वीडियोस प्ले होती रहती है। वो नरेशन बेस्ड वीडियोस कहलाती हैं। तो हम ये सारी चीजें इंशाअल्लाह इसमें सीखेंगे। वीडियो जनरेशन टूल, जाहिर है जब हम सीखेंगे कि ये कैसे तैयार करते हैं, तो ये भी सीखेंगे कहाँ से तैयार करते हैं। वीडियो एडिटिंग, हम चूंकि अभी एआई सिर्फ 10 सेकेंड की वीडियो तैयार कर रहा है मुफ्त वर्जन में। पेड वर्जन में ज्यादा 2 मिनट तक की भी वीडियो तैयार कर रहा है, लेकिन हम मुफ्त वर्जन में ही सीखेंगे जो कुछ सीखेंगे। तो मुफ्त वर्जन में 10 सेकेंड की ही वीडियो तैयार कर रहा है, तो इसलिए हमें एडिटिंग की जरूरत पड़ती पड़ती है। और वैसे भी आपको एडिटिंग यानी यानी अगर आप वीडियो तैयार कर रहे हैं तो आपको एडिटिंग आनी ही आनी चाहिए। इस वजह से ये भी हमारे मॉड्यूल का एक हिस्सा है कि वीडियो एडिटिंग में हम सीखेंगे कि क्लिप्स की ट्रिमिंग, यानी जो कई क्लिप्स हैं तो उन क्लिप्स को जोड़े कैसे, और किसी क्लिप्स में अगर कुछ गैर जरूरी चीजें आ गई हैं तो उसे हम रिमूव कैसे करें, कट कैसे करें। इसी तरीके से एनिमेशन डालना, यानी एक वीडियो, एक क्लिप के बाद जो दूसरी क्लिप आती है, दूसरी क्लिप के बाद तीसरी क्लिप, या यूं कहें कि एक सीन के बाद दूसरा सीन, दूसरा सीन के बाद तीसरा सीन, जो मंजर बदलते हैं, तो उसमें एनिमेशन डालते हैं ताकि वो लुक बेहतर हो, है ना, वो चेंज सीन बदलने का लुक अच्छा हो जाए। तो वो चीजें हम सीखते हैं। इसी तरीके से वीडियो से आवाज निकालना, यानी कोई वीडियो है उसमें से सिर्फ आपको आवाज चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, तो आप वीडियो से आवाज निकाल लें और फिर उसके बाद आप वीडियो तैयार कर लें अपनी फुटेज डाल करके, अपनी वो इमेजेस वगैरह डाल करके। इसी तरीके से सब टाइटल लगाना, कि आप इसमें जो है यानी वीडियो एडिटिंग में सिंपल एक क्लिक से आप सबटाइटल बना सकते हैं। यानी 1 घंटे की वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो है, जस्ट एक क्लिक करिए और वो ऑटोमेटिक सबटाइटल लग जाएगा। पहले जमाने में होता था कि वीडियो के मुताबिक बैच करके वो सबटाइटल लगाना पड़ता था। सबटाइटल जानते हैं, वो जो वीडियो रहती है ना, वीडियो के नीचे एक पट्टी चल रही होती है, जो आदमी जो बोल रहा होता है ना, वही चीजें नीचे लिखी हुई शक्ल में आती रहती है, उसी को सबटाइटल कहते हैं। फिर उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव करना, यानी अगर कोई मैनुअल आपके वीडियो है तो उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड, अच्छा ये डबल हो गया है। बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज है, यानी आपने ऐसी जगह वीडियो तैयार की जहां पे पीछे वो सड़क थी, या इसी तरीके से दरख्त के पत्ते हिल रहे थे, कौवा जो है कांय कांय कर रहा था, या इस टाइप की कुछ अननेसेसरी गैर जरूरी टाइप की आवाज आ गई है, तो उन चीजों को आप रिमूव कर सकते हैं एडिटिंग में, एआई के जरिए। यानी
एडिटिंग में भी हम एआई का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हाईलाइट, और यानी किसी चीज को अगर आपको हाईलाइट करना है तो वो कर सकते हैं, किसी चीज को अगर आपको हाइड करना है, ब्लर करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप सीखेंगे यहाँ वीडियो एडिटिंग में। वीडियो एडिटिंग जो है ना, के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन दस्तयाब हैं। उनमें से एक एप्लीकेशन, वैसे तो कैपकट सबसे मशहूर है, लेकिन इंडिया में वो कैपकट बैन है चाइनीज होने की वजह से। तो इस वजह से हम काइन मास्टर सिखाते हैं। काइन मास्टर का जो, यानी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे ना, तो उस पे वाटर मार्क आता है। उस वाटर मार्क को रिमूव करने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, 1700-1800 रुपये कुछ साल का पे करना होता है। हम आपको ये जो काइन मास्टर है, ये इसका डिकोडेड वर्जन आपको देंगे, यानी हमारे दिए हुए वर्जन से आप इमेज, सॉरी, वीडियो एडिट कर सकेंगे, और उसमें आपको वाटर मार्क का भी मसला नहीं रहेगा। इसी तरीके से हम सीखेंगे इसमें ऑडियो एंड वॉइस। ऑडियो एंड वॉइस में टेक्स्ट टू स्पीच, यानी आप कोई लंबी सी वो टेक्स्ट दे दें, और वो एक खास अंदाज से वो तैयार करके दे देगा, ऑडियो तैयार करके दे देगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, एआई बोल करके दे देगा। इसी तरीके से स्पीच टू टेक्स्ट, कोई लंबी सी तकरीर है, वो पहले लोग लिखते थे ना, वो खुतबात वगैरह, खुतबात का मजमुआ तैयार करते थे। तो वैसा आप तकरीर जो है वो एआई को दे दे, वो पूरी की पूरी तकरीर को तहरीर की शक्ल में बदल करके आपको दे देगा, आप एक किताब लिख डालें। है ना, वो अब वो जमाना नहीं है कि आप टेप रिकॉर्ड लेकर के बैठे और फिर हजरत क्या क्या फरमा रहे हैं उसको एक एक जुमला लेकर के नकल कर रहे हैं, लिख रहे हैं। बस एआई अब ये काम बड़ी आसानी के साथ कर देगा। इसी तरीके से इसमें कहानी, डॉक्यूमेंट्री, ऑडियो बुक, इस टाइप की चीजें अगर आप तैयार करना चाहें तो तैयार कर सकते हैं। पॉडकास्ट तैयार कर सकते हैं, सॉन्ग वगैरह तैयार कर सकते हैं, कोई नगमा वगैरह बनाना हो। एआई सिर्फ बोलता नहीं है, एआई गाता भी है। इसी तरीके से वॉइस डबिंग, यानी आप आवाज को डब भी कर सकते हैं। आवाज को डब कर सकते हैं का मतलब, आप अपनी जो वीडियो बना रहे हैं ना जिस जबान में, अगर आप मसलन उर्दू जबान में बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सेम वीडियो, सेम फुटेज के साथ, सेम इमेजेस के साथ जो है वो इंग्लिश में भी जो है वो तैयार हो, तो आप उसको डब कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, किसी भी पैसे वैसे खर्च किए बगैर। और वो जो है इंग्लिश में भी वो ऑडियो आ जाएगी बिल्कुल आपकी आवाज के साथ। यानी डबिंग में आपकी आवाज भी नहीं बदलेगी, आपकी एक्सेंट आपकी आवाज में वो जो है तैयार हो जाएगी। रिसर्च एंड स्टडी। रिसर्च एंड स्टडी में हम सीखेंगे कि हम इंफॉर्मेशन, मालूमात इकट्ठा कैसे करते हैं। इसी तरीके से सोर्सेस का इस्तेमाल, यानी मुख्तलिफ सोर्सेस से जो आप मालूमात इकट्ठा किए, मसलन यूट्यूब पे वो कंटेंट है जो है पीडीएफ में है, या इसी तरीके से टेक्स्ट की शक्ल में है, किसी भी फॉर्मेट में है, तो उन सोर्सेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिर पीडीएफ की समरी कैसे बनाते हैं। वीडियोस, आपके पास 4-4 घंटे की वीडियो है, 8 घंटे की वीडियो नहीं, 4-4 घंटे की मसलन दो वीडियो है, तो उसका एक 5 मिनट का, 10 मिनट की आप समरी वो तैयार करा सकते हैं, खुलासा तैयार करा सकते हैं। मवाद की छान पटक, रोड मैप तैयार करना, पॉडकास्ट तैयार करना, वीडियो और स्लाइड तैयार करना, यानी आप कोई किताब दीजिए और उस किताब के मुताबिक एआई आपको मिनटों में पूरी किताब का खुलासा वीडियो की शक्ल में कहेंगे, वीडियो की शक्ल में बना के देगा। आप स्लाइड की शक्ल में कहेंगे, स्लाइड की शक्ल में बना के देगा। स्लाइड अगर ना समझ में आए तो ज्यादा फिक्र मत करिएगा, क्लास में समझ लीजिएगा। इसी तरीके से पॉडकास्ट आप कहेंगे तैयार करके देने के लिए, तो वो आपकी किताब का पॉडकास्ट बना करके देगा। एक हमने सैंपल के लिए एक वो तैयार किया था, आखिर में वक्त मिले तो बताऊंगा। कोर्स की जरूरत, कोर्स में क्या चाहिए, कोर्स करने के लिए आपके पास एक आदत मोबाइल होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। देखिए, मोबाइल या लैपटॉप का मतलब ये है कि जो भी हम सिखाएंगे ना, वैसे तो हम लैपटॉप से आम तौर से बताएंगे, जहां जरूरत होगी वहां मोबाइल से भी बताएंगे।
लेकिन जो फीचर हम यहाँ लैपटॉप में बताएंगे, सेम टू सेम 100% वो फीचर आपके मोबाइल में दस्तियाब रहेगा। यानी ऐसा कोई एक फीचर ऐसा नहीं बताऊंगा कि ये कंप्यूटर में तो दस्तियाब है मोबाइल में दस्तियाब नहीं है, वैसा नहीं। जो भी बताऊंगा वो सारा का सारा मोबाइल में दस्तियाब रहेगा। ठीक। तो इसलिए अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, फिक्र की कोई बात नहीं है, मोबाइल पे आप पूरे तौर पर सीख सकेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप दस्तियाब है तो बहुत अच्छी बात है, आप लैपटॉप पे अच्छा काम कर सकेंगे। बस यानी मोबाइल पे थोड़ी सी सहूलत कम मिलती है, कंप्यूटर पे सहूलत ज्यादा मिलती है, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर पे आपके हाथ में माउस रहता है, जहां पे आपको टिक करना है एग्जैक्ट प्लेस पे आप टिक कर सकते हैं, है ना, क्लिक कर सकते हैं। और फिंगर का जो उंगली का पॉइंट रहता है जरा सा बड़ा रहता है, तो उतनी आसानी से टिक नहीं होता, तो थोड़ी सी वो आसानी हो जाती है कंप्यूटर पर। बाकी फीचर्स फंक्शन दोनों सेम टू सेम रहेगा। इंटरनेट अच्छा रहे, चूंकि हमारी क्लास जूम पर होती है, तो जूम पर नेट का जरा सा मसला रहता है। अगर इंटरनेट का सिग्नल जरा वीक है तो आवाज वगैरह इंटरप्ट होती है, तो इसलिए कोशिश करिएगा कि जरा सही लोकेशन पर रहें। जो चीजें हम पढ़ें तो बेहतर ये है कि आप उसे नोट करते रहें, अपने साथ कलम और नोटबुक रखें। चीजें आप जरूरी चीजें नोट करेंगे तो ये बहुत मुफीद रहेगा आपके लिए। क्लास की तरतीब जो है हमारे यहाँ ये होती है कि शुरू के 40-45 मिनट हम यानी सबक पढ़ते हैं। 40-45 मिनट सबक पढ़ने के बाद फिर जो है वो सवाल जवाब का सेशन शुरू होता है। वैसे आमतौर से 1 घंटा, यानी यूँ कह ले के 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट तक क्लास चलती है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि सवालात सारे लें, यानी आपको जो भी दिक्कत आ रही है, जो परेशानी हो रही है, आप सवाल जवाब के सेशन में डिस्कस करें। हम यहाँ थे कि हफ्ते में 2 रोज छुट्टी हुआ करती है। एक तो जुमरात के दिन, चूंकि जुमरात की छुट्टी उलमा के यहाँ बाय डिफॉल्ट है, उसमें तकद्दुम तअख्खुर नहीं हो सकता है। और एक छुट्टी गैर मुतय्यन होती है, वो हम बता दिया करते हैं ग्रुप में जिस दिन छुट्टी करनी होती है। ठीक है। उसके अलावा क्लास की रिकॉर्डिंग कई लोग पर्सनल पर वैसे भी, हालांकि हमने इश्तिहार में ये बात लिख दी हुई है, लेकिन पर्सनल पे भी कई लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे। तो अर्ज ये है कि क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, है ना। लेकिन क्लास की रिकॉर्डिंग फौरी तौर पर नहीं दी जाती है। यानी ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हुआ और आप जो है कहने लगे कि भाई क्लास की रिकॉर्डिंग दे दीजिए। क्लास की रिकॉर्डिंग में 1 से 2 रोज का वक्त लगता है ना। तो 24 घंटा तो एकदम सब्र करे ही करे। 24 घंटे के बाद ही जो है वीडियो की कोई शक्ल बन पाएगी। कोशिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर दे दे, लेकिन प्लीज 24 घंटे से पहले वीडियो मत मांगिएगा। दूसरी बात, रिकॉर्डिंग के हवाले से, देखिए हमारी जो ये क्लास है ना, लाइव क्लास है। क्लास रिकॉर्डिंग हम जिम्नन देते हैं, मुस्तकिल तौर पर क्लास रिकॉर्डिंग नहीं देते, वरना हम सिर्फ रिकॉर्डिंग ही सेल किया करें, फिर हमें लाइव क्लास पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। हमें तो मेहनत और हमारी कम हो जाएगी, बल्कि हमारी हमें कुछ मेहनत पड़ेगी ही नहीं। तो असलन हमारी लाइव क्लास है, आप लाइव क्लास में जरूर तशरीफ लाएं। रिकॉर्डिंग जिम्नन है, लाइव क्लास से आपको ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बात बल्कि तीसरी बात कि ये रिकॉर्डिंग जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होती है। ये जब तक क्लासेस चलती रहती है ना, तभी तक के लिए ये वीडियोस दस्तयाब रहती हैं। और क्लासेस खत्म होने के साथ साथ वीडियो भी खत्म हो जाती हैं। तो आप इस भरोसे पर कि आप तो दाखला ले लिए हैं, फिर कभी मतलब आप क्लास स्किप करें ना आए, या क्लास स्किप कर लें तो फिर वीडियो भी ना देखें कि देख लेंगे बाद में, कल देख लेंगे, वो कल कभी आती नहीं है। इस तरीके से आपके साल भर गुजर जाएंगे, आप क्लास से इस्तेफादा नहीं कर सकेंगे अगर वीडियोस दस्तयाब रही तो ये भी आपके हक में है कि इसका टाइम सेट है, उतने टाइम पे आप क्लास से इस्तेफादा करें। क्लास से इस्तेफादा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो से इस्तेफादा करें। लेकिन इस जो 40 दिन का अरसा है, इसमें कोर्स जरूर भी जरूर वो मुकम्मल करें, वरना आपके पैसे जाए हो जाएंगे इस उम्मीद पर कि हम देख लेंगे, कल देख लेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। ठीक है। क्लास का वक्त, क्लास का वक्त 9:30 बजे मुतय्यन है। 9:30 बजे इंशाल्लाह रोजाना हमारी क्लास हुआ करेगी। ठीक है। फीस हमारे यहाँ 1,000 रुपये है, जो आप हजरात ने ऑलरेडी पे कर दिया है। उसके बावजूद मैं यहाँ दिखा करके
اس کو ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ فیس دینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں. ہم نے یہاں پر خاص طور سے لکھا ہے ریفنڈیبل ہے، یعنی 3 دن تک تو ہمارے یہاں بالکل یعنی سمجھے کہ مفت کلاس ہے. 3 دن تک آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے، اچھا لگے، کلاس اچھی ہے، ٹھیک یعنی ہمارے کام کی ہے. آپ نے آلریڈی آپ نے پورا آؤٹ لائن دیکھ لیا ہے کہ ہم کیا چیزیں سیکھنے والے ہیں. آپ کے لیے مفید ہے، آپ کے لیے اچھا ہے، تو آپ جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں 3 دن تک بالکل فری، ہے نا. اگر آپ کو اچھی نہیں لگی ان 3 دنوں کے اندر، آپ پرسنل پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی 100% فیس واپس ہو جائے گی، کوئی بھی فیس کے اندر کٹوتی نہیں ہوگی 3 دن کے اندر، ٹھیک ہے. 3 دن کے بعد بھی آپ پھنستے نہیں ہیں، بلکہ 3 دن کے بعد ہمارے یہاں کینسل اینی ٹائم کی سہولت رہتی ہے کہ آپ نے جتنی کلاسز اٹینڈ کی ہیں نا 3 دن کے بعد، یعنی ایک دن سے مثلا 10 کلاسز آپ نے اٹینڈ کیے، 50% کلاسز آپ نے اٹینڈ کیے، تو آپ کی صرف 50% فیس کٹے گی، باقی کے 50% فیس آپ کو واپس ہو جائے گی. اگر بعد میں بھی آپ کو اچھا نہ لگے، بعد میں بھی اگر آپ کو لگے کہ کانٹینٹ آپ کے لیول سے بہت ہائی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا آپ کو لگے کہ آپ کے معیار سے بہت کمتر ہے، یہ چیزیں تو ہمیں پہلے سے ہی آتی ہیں، تو تو بھی آپ کی فیس واپس ہو جائے گی، یعنی آپ آگے کنٹینیو نہ کرنا چاہیں تو اس لیے فیس کے حوالے سے بالکل مطمئن رہیں. آپ نے کورس میں داخلہ لیا ہے، آپ پھنسے نہیں ہیں، آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. سیکھیے، جب تک اچھا لگے مزہ آئے، نہیں اچھا لگے کہ نہیں اپنے کام کا نہیں ہے، تو آپ کورس سے کوئٹ کر سکتے ہیں بے فکر ہو کے.